Good morning, students. So today we will be starting off with the new chapter. आज हम कुछ नया करते हैं. रोज पढ़ते पढ़ते हमें बहुत दिन होंगे. We will start with poetry section today. Okay. In poetry section, let us begin the things with a poem which teaches us or tells us many things. कुछ नई पोएम के बारे में हम बात करते हैं. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. क्या मतलब है कीपिंग क्वाइट? क्या क्या हमें बता रही है, किस तरह से क्या एक्सप्लेन कर रही है? रिटन बाय पैब्लो नेरुदा. अब पैब्लो नेरुदा कौन है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं. देखो, पैब्लो नेरुदा was born in 1904 and he was there with us till 1973. He was a poet who was also was a very active politician. He was also awarded by Nobel Prize in Literature in 1971. अपनी डेथ से 2 साल पहले he was awarded as Nobel Prize for Literature उनको मिला था. His poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. बहुत सुंदर images का इस्तेमाल ये करते हैं जब भी ये पोइट्री, कुछ भी पोइट्री लिख रहे हैं, तो वो इमेज हमारे लिए दिमाग पे बना पाना बहुत आसान हो जाता है. He was also a diplomat and a politician and he received numerous prestigious awards including the International Peace Prize in 1950, the Lenin Peace Prize and Stalin Peace Prize in 1953. बहुत सारे प्राइजेस जो हैं वो इनको मिले हैं. अब इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक आउटलाइन ऑफ द पोएम, क्या है, किसके बारे में बात कर रही है? Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. क्या इम्पोर्टेंस है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, उसके बारे में बात कर रहे हैं. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, culture, nationality, geographic division, है ना. इन सब में बहुत ज़्यादा बांट दिया है. अब we need to rise above these shadow lines and took up the larger pictures. The poet talks about the necessity of increasing a feeling of mutual understanding between the human beings. This is the core idea of the poem. Necessity of self introspection. इस पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो पैब्लो नेरुदा दे रहे हैं. What he is explaining here is that a man's action, his rushes, his hurries, they have already caused much chaos and trouble in this world. बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इस वजह से. Now it is time when man should take a pause. रुक जाना चाहिए. ह्यूमन बीइंग को anyhow रुक जाना चाहिए. Stillness doesn't mean total inactivity here. उसकी जो स्टिलनेस है वो रुकने की बात कर रहा है, इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है. रुकना जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए. इनएक्टिविटी तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब हमें एक्टिव रहना है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हुए खुद को. दे while doing self introspection we must create the feeling of mutual understanding, है ना. इन सब चीज के बारे में जो है पोएट इस वक्त बात करेगा हमसे.
When we begin up, the initial lines क्या देखते हैं हम देखते हैं पोएम बिगिन हुई है हमारी Now we will count up to 12 and we will all keep still. क्या कह रहा है पोएट हमको? पोएट कह रहा है the poet asks, requests us that each one of us, किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है? That each one of us count up to 12 and then be quiet. फिर चुप हो जाओ एकदम. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्या कह रहा है? He says that poet यहाँ हमें कह रहा है कि हम रुक जाए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाए, किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें और किसी भी तरह का कोई मूवमेंट जो है वो हम बिल्कुल भी ना करें, है ना. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Exotic, something different, एक अलग सा, कोई मशीन्स नहीं है, कोई इंजन्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक साथ हैं. एक अलग सी स्ट्रेंज फीलिंग है क्योंकि हमने कभी फील ही नहीं करी. स्ट्रेंज इसलिए है ये. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt's hand. जो हमने खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया, सबको देखने का मौका हमको मिलेगा. फर्दर प्रोसीजर्स में कह रहा है Those who prepare green wars, war with gases, war with fire, victory with no survivor, would put on clean coats and walk with their brothers in the shade, doing nothing. आराम से सब भूल जाओ, अपने भाइयों के साथ घुलो मिलो सब करो, है ना. ये सब हमें एक्सप्लेन कर रहा है. हम पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं. The poet urged each one of us to count up to 12 and then stay quiet. Now the poet might have used the phrase count to 12. क्यों? सिग्निफिकेंस क्या है नंबर 12 की? देखो, there are 12 hours represented a clock as there are 12 months in a year. 12 का सिग्निफिकेंस समझ रहे हो ना? 12 महीने हैं, 12 घंटे हैं, 12 घड़ी एंशिएंट टाइम में हम काउंट करते थे, तो उससे जो है अटैच करने की कोशिश यहाँ कर रहा है. He might have wanted the people to keep still as long as they could. He want a moment of silence on the earth wherever nobody will speak in any language, है ना, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं होगी. In this way, there will be no language barrier between people. The harsh words will not be spoken to each other. In this moment of silence, the poet does not want anybody among us to move their hands. He wants us to remove motions. बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है हमको, कुछ भी नहीं करना है, कोई मूवमेंट हमको नहीं करनी है, बिल्कुल चुपचाप से हम बैठे रहे. ये पोएट जो है हमको रिक्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट 4 लाइन्स में क्या बता रहा है? द पोएट फील्स दैट such a moment of silence would be an unusual thing, an exotic moment, कुछ different, अलग सा हमारे लिए होगा. It will have miraculous consequences. ये भी एश्योर कर रहा है हमको कि ये जो साइलेंस की हम बात कर रहे हैं, इसके जो consequences होंगे, those will be very miraculous. क्या कैसे miraculous होंगे? There will be no hurry of machines to put on. Machines will not, if they will not work, no pollution would be there. People will not in a hurry and body to go anybody else. It will be strange and an unfamiliar moment. Because of that, a stillness will surround us all around. In this period, the bounds of humanity will get strong.
ऐसे मोमेंट में वो कह रहे हैं कि जो हमारा बॉन्ड है आपस में, ह्यूमैनिटी का जो बॉन्ड है वो ज़रूर गहरा होगा, वो ज़रूर बढ़ेगा। ऐसा पोइट को लगता है कि इसमें जो बॉन्ड है, ह्यूमैनिटी का जो बॉन्ड है वो ज़रूर गहरा होगा, लोगों को एक दूसरे को समझने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ऐसा हमारे पोइट को लगता है। फिर वो फिशरमैन का एग्जाम्पल लेता है कि वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, मैन हु आर गैदरिंग सॉल्ट, उनको मौका मिलेगा उनके जो हाथ है उनको देखने का। क्या कहना चाह रहा है? इन दिस मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी क्या होगा? द फिशरमैन्स वुड नॉट बी एबल टू कैच फिशेस, इसी वजह से whales and other rare species of fishes they will be safe in the sea. This idea is suggested कि we will by this, क्या suggest करना चाह रहा है? वो suggest करना चाह रहा है that with this we can begin not to destroy nature. नेचर के साथ जो खेलना ह्यूमन बीइंग ने शुरू कर दिया है, ये सब कर के हम बचा पाएंगे अपनी नेचर को। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है द पीपल हु कलेक्ट सॉल्ट्स। अब क्या कह रहा है? दैट द वुंडेड हैंड्स ऑफ विच ही हैड नो टाइम अर्लियर टू लुक एट दोज वुंडेड हैंड्स, कभी टाइम नहीं मिला, he will get time to recover from the wounds। तो क्या होगा? टाइम मिलेगा यहाँ पर अपने वुंड से रिकवर होने के लिए, ये बेनिफिट जो है वो हमको वहाँ पर मिलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? हमारा पेब्लो नेरुदा बता रहा है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में जब हम प्रोसीड करते हैं तो हम देखते हैं कि वॉर्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द पोएट now speaks of those who wage wars against humanity or against environment, wars of all kinds, हर तरह की wars including chemical wars, poisonous gases, wars that bring death, destruction, इसके अलावा कुछ लाता ही नहीं है war, and war that leave none to celebrate victory। अब हम एटॉमिक एनर्जी हमने बना दी, एटॉमिक बॉम्ब हम यूज कर रहे हैं, अगर इनमें से एक भी गलती से भी कहीं इस्तेमाल हो जाता है तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑल कंट्रीज आर न्यूक्लियर एफिशिएंट कंट्रीज, सारी कंट्रीज जो है वो क्या है? वो न्यूक्लियर एफिशिएंट कंट्रीज बन गई हैं। तो अगर उनमें से कोई एक जो है, कोई एक इनका इस्तेमाल करेगा तो बाकी पीछे रहेंगे क्या? नहीं, वो भी इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये नुकसान होगा दैट एंटायर ह्यूमन रेस विल गेट डिस्ट्रॉयड। पूरी ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हम किस विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं? जब उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई हमारा सर्वाइवर ही नहीं होगा तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? लॉजिक ही नहीं है कोई लड़ने का। ये हमको एक्सप्लेन कर रहा है नरेटर यहाँ पे, दैट वी आर फाइटिंग फॉर एन एंडलेस पर्पस, जिससे किसी को भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या चाहता है कि लोग क्या करें? वो चाहता है दैट ही सेज that such men should stop their activity and they must steer these clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers, building brotherhood, building understanding with each other. The poet implies that
The war-torn world should be replaced by the one with an atmosphere of peace, brotherhood, harmony. वो कह रहे हैं अभी टाइम आ गया है जब हमें रिप्लेस कर देना चाहिए नफरत को प्यार से। अब नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है? What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. अब रीजन को क्लियर कर रहा है। क्या कह रहा है? The poet makes a clarification that though he is advocating the need for the silence, his advice should not be confused with total inactivity, that is death. उससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। He does not want any association with that. वो नहीं चाहते हैं कि उनकी टोटल इनएक्टिविटी को हम कहीं भी डेथ से कोरिलेट करें। He says that life is meant to be lived. जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी जीने के लिए है। ये चीज वो हमको क्लियर यहाँ पर बता दे। फिर सेकंड लास्ट पैरा जो आता है हमारा, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस शुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और रीजन को खोल के क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बता रहे हैं? The poet further here advise the people should stop being self-centered and selfish. ये जो आज का ह्यूमन बीइंग है वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। तो वो यही बता रहे हैं कि ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है हमारी, इससे ऊपर उठने की हमको ज़रूरत है। सेल्फिशनेस छोड़ने की रिक्वायरमेंट है हमको भी। अगर हम नहीं छोड़ पाएंगे तो हम क्या करेंगे? फंस जाएंगे वहीं पर। For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or not fulfilling their duties. कह रहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए ही हमको आगे जाना है। द ह्यूज साइलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, which will arise from such a moment, वो सन्नाटा, शांति सब रह जाएगी। It will only serve to help people, लोगों की मदद करने के लिए ही वो ज़रूरी है। It will help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. See, what is the basic problem what we are facing nowadays? We are not able to understand what we want. हम वही नहीं समझ रहे हैं। We have become so materialistic that we are running behind a race. पैसे कमाने की उसमें भागे जा रहे हैं और हम खुश नहीं है। डिप्रेशन हो रहा है हमको, सुसाइड्स केस बढ़ रहे हैं। क्यों? अरे खुद को तो समझो पहले, हम क्या चाह रहे हैं? हम यही नहीं सोचना चाहते। एक भेड़ चाल बन गई है, एक के पीछे एक भागे चले जा रहे हैं। So it is very important to overcome such kind of feeling. Now people have been threatening themselves with death by their activities. हम खुद ही डर रहे हैं, डिप्रेशन में आ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे। हमें पता है हम अकेले हैं, हमें सहारे की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है। हम बात नहीं करेंगे लेकिन ईगो हर्ट होता है हमारा। अरे यार मेरे पास पैसे की तंगी चल रही है, पड़ोसी को बताऊंगा, भाई को बताऊंगा तो वो लोग हंसेंगे, अरे यार कितना क्या करता है। ये डर जो है हमारा, ये हमें अपार्ट कर रहा है अपने लोगों से। वही हमारी सफरिंग का मेन रीज़न है, वही एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है
जिससे हमें ओवरकम करना है. नाउ द मोमेंट ऑफ साइलेंस will give them time to understand themselves better. खुद को और अच्छे तरीके से समझने में हमें हेल्प मिलेगी इस साइलेंस. लास्ट पैरा में बात कर रहा है पोएट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. This is how he ends the poem. The poet here feels that earth can enlighten us and guide us in this process of keeping quiet. देखिए हमको अर्थ से सीखने की ज़रूरत है. भाई क्या सीखने की ज़रूरत है? He wants us to observe that there is some activity under apparent silence. For example, a seed appears to be dead, but huge fruit bearing trees are born from such seeds lying dead beneath the earth. पेड़ से टूट के गिर गया, कुछ सीड है, गिर गया, उसकी जो डेथ हो गई ना, लेकिन वही सीड जर्मिनेट होगा और फिर से एक पेड़ बनेगा. क्या बताना चाह रहा है पोएट? एवरी एंड हैज अ न्यू बिगिनिंग. हिम्मत नहीं हारनी है, बस हिम्मत नहीं हारनी है. हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा है ह्यूमन बीइंग के लिए. फाइनली पोएट थिंक्स दैट ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू. जो उसको कहना था, जो हमें समझाना था, वो सारी चीज़ें वो समझा चुका है, बता चुका है, बोल चुका है. अब वो कहता है कि नाउ ही वांट्स अस टू कीप क्वाइट व्हाइल ही इज काउंटिंग टू 12 एंड ही विल लीव नाउ. नाउ ही हैज लेफ्ट ऑल द थिंग्स अप टू अस. कि अब हमें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. मैंने तो तुमको जो बताना था वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी. So he had explained all the things. If we talk about the poem in current scenario, तो हम देखते हैं बिल्कुल ठीक है, पोएम जो बोल रही है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जो है वो हमको ले जा रही है. There are few questions too which comes in your board exam at regular basis. उनके बारे में थोड़ा सा बात मैं करना चाहूँगी. सबसे पहला जो है वो है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामेटिक काउंट टू 12 इन कीपिंग क्वाइट. 12 नंबर की सिग्निफिकेंस क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. रेगुलर इंटरवल्स पे सेम क्वेश्चन, थोड़े से वेरिएशन के साथ 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, द पोएम opens up with the poet's appeal to begin with a count to 12 followed by a moment of silence. ये बोलता है ना, वो शुरुआत इसी से कर रहा है. 12 तक काउंट करने के लिए हमको बोलता है. Now the poet links silence with hope for a moment of togetherness. The repetition of the poet's request to count to 12 in the first and the last stanza creates a personal space of silence in the poem. Clear? हमें इस चीज़ को वो बता रहा है, समझा रहा है. कैसे? The poet seeks this moment of silence as a moment to introspect and meditate, to share feeling of oneness. उससे कर रहा है. अब the poet wishes that in this selected moment, the fisherman would not kill the whales and the man gathering salt would give rest to their injured hands. है ना? Dramatic count of 12 यही बता रहा है. The threat of destruction of the world would come to a halt. In this chosen moment, we would have time to self-assessment. The number 12 is dramatically significant
टू रिप्रेजेंट अ क्लॉक टाइम एज अ मोमेंट इन रियल लाइफ। दोनों को कोरिलेट आपस में कर दे रहा है बस। हिंदी में हम देखते हैं 12 घड़ी हुआ करती थी नापने के लिए पहले, है ना, टाइम को सबसे पहला 12 आवर्स 12 मंथ्स। तो वहाँ उसने नंबर की उस सिग्निफिकेंस को वहाँ से पिक कर लिया है। एक और क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, पोएटिक डिवाइसेस दैट द पोएट अडॉप्ट इन द पोएम, है ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस स्टैक बेस्ड क्वेश्चन में आपका आ ही जाता है। देखो, द पोएम हियर द पोएट हैज इनकॉर्पोरेटेड द यूज ऑफ रिपीटिशन in the line, let's not speak and let's stop for 1 second to create the poetic effect of emphasis on his leaders। repetition का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। even the phrase count to 12 and count up to 12, they are symbolic as the poet repeat his request to keep quiet for a second of time, for a couple of time। the word 12 अगेन क्या है, सिम्बोलिज्म है। इट सिम्बोलाइजेज मेजर ऑफ टाइम रिप्रेजेंटिंग आवर क्लॉक टाइम इन आवर रियल लाइफ एंड कैप्चरिंग अ मोमेंट फ्रॉम अवर प्रेजेंट टाइम। अब एक और फ्रेज इसमें आगे चलकर आया है, हॉट हैंड्स एंड क्लीन क्लोथ्स। ये ऑल्टरेशन के पोएटिक डिवाइस की एग्जाम्पल है। आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं मैन विद क्लीन्स हिज सोल हार्ट एंड माइंड इन द प्रोसेस। यहाँ पर जो ब्रदर वर्ड आया है, द वर्ड ब्रदर हेयर इम्प्लाइज ब्रदरहुड एंड अ साइनेडॉक इज यूज्ड बाय यूजिंग द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल करी हैं उसने। देयर इज द यूज ऑफ मेटाफर ऑल्सो इन पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एज पोएट वांट्स द वॉर्मंगर्स टू शेड देयर ब्लड सॉइल क्लोथ्स, मीनिंग स्टॉप वॉर। क्या कुछ और रहा है मतलब कुछ और निकल रहा है। वहां वो क्या कह रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है स्टॉप वॉर एंड पुट ऑन फ्रेश क्लोथ्स। यहाँ फ्रेश क्लोथ्स का क्या मीनिंग है, फॉलो ब्रदरहुड। तो इस तरह से हम देखते हैं सिंबोलिज्म, साइनेडॉक, मेटाफर, इन सब पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल जो पोएट है वो यहाँ पर कर रहा है। एक और क्वेश्चन इमेजरी से रिलेटेड भी बनता है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी एन आइडियल वर्ल्ड डज द पोएट विजुअलाइज हियर। 6 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो, द पोएट लॉन्ग्स फॉर अ काम क्वाइट एंड पीसफुल वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एज ही विजुअलाइज टुगेदरनेस ऑफ द पीपल। अब कैसे शांति चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस मूवमेंट विल गिव अस टाइम इन साइलेंस फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन वी कैन स्पिरिचुअली अटेन अवर मॉरल सेल्फ थ्रू द मूवमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन। दोनों चीज जो है वो हमारे काम आएंगी। नाउ दिस मूवमेंट will bring an end, किस चीज का एंड लेके आएगा, to all destructive activities in the world. The fishermen will not be killing whales and the men gathering salt will have time to rest their injured hands. On the other hand, environmental degradation will come to an end. The warmongers जो हैं will be silenced in a movement of brotherhood to mediate and clean their soul. The poet hopes that it will be an ideal world where man will be able to come out from his self-centered attitude to gain moral peace. दोनों तरीके से जो है वो मदद करने में काम हो। कुछ छोटे क्वेश्चंस और हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर। क्या चीज़ें हम नेचर से सीख सकते हैं।
तो लाइक वी कैन आंसर दैट लाइफ अंडर apparent silence is the message which human being can learn from nature. The earth is never in a state of total inactivity. Nature continues to breathe and work even when there is silence all around. अब मुझे लगता है ये सब हम छोड़ देंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे. How we will earn our livelihood and all these things. तो वहाँ हम देखते हैं अर्थ हमें ये सिखाता है कि एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगनिंग. जब लगता है सब कुछ शांत है, सन्नाटा है, अर्थ की सर्विस के अंदर तब भी काम हो रहा है, तो हम शांति से विद ब्रदरहुड भी काम कर सकते हैं. ये लेसन हमको ये पोयम दे रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम कीपिंग क्वाइट. थैंक यू वेरी मच.